All right, so today we are going to start with a new chapter, which is electromagnetic induction. Interesting chapter है, easy है, plus heavy weightage है, तो you need to pay proper attention on this electromagnetic induction. तो बेसिक आइडिया यहाँ पे ये था, as you know, आपने पिछले दो चैप्टर्स से स्पेसिफिकली मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट में what you have learned is if you have a current carrying wire, मान लेते हैं हमारे पास एक current carrying wire है, okay, so current carrying conductor, any current carrying conductor will produce magnetic field in its surrounding region, surrounding space. तो अगर moving charges मतलब current, अगर current magnetic field generate कर सकता है, तो काउंटर क्वेश्चन ये है, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी करंट जनरेट कर सकता है क्या? When I say magnetic field can generate current or not, we are specifically talking about हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में हमने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है, हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट नहीं किया है. So the basic question was, we know that electric current produces or generates magnetic field. So can magnetic field also generate, also produce current, electric current? That is the basic question here. Then the answer is yes. So magnetic fields भी current generate कर सकते हैं, but under specific conditions, right? By the way, normally होता क्या है? Let's divert ourselves little bit. हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में एक रेजिस्टेंस है. इस सर्किट में अगर आपको करंट चाहिए, तो करंट के लिए आप बोलते हो that you need to have a source of EMF, है ना? मतलब करंट आने के लिए EMF चाहिए, राइट? तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली करंट इंड्यूस करता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि EMF इंड्यूस हुआ, क्योंकि यू नो सोर्स ऑफ करंट इज EMF. तो दैट इज व्हाई नॉर्मली इवन दो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस अगर होंगे तो करंट इंड्यूस होगा, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि EMF इंड्यूस हुआ, राइट? सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज, in this whole chapter, instead of saying induced current, at many places I will be using words like induced EMF, because EMF होगा तो ही current होता है, right? So Faraday performed many experiments with a moving coil or a moving magnet, okay? और उसके जो observations थे, those are listed. Let us list it one by one, क्योंकि ये theoretical form में क्वेश्चन आ सकता है. So observations from Faraday's experiment. तो सबसे पहला observation is quite interesting. What Faraday did was, उसने एक मैग्नेट लिया और एक क्लोज्ड लूप है जिसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है. There is no source of EMF, आप देख रहे हो, उसमें कोई सेल, कोई बैटरी हमने नहीं लगाया है. Then he took a magnet, north, south, something like this. तो जब मैग्नेट को इस कॉइल के पास में मूव किया, when the magnet was moved towards the coil, there was a temporary deflection in the galvanometer. So when a magnet is moved close to a coil, there is a current induced in the coil, okay? Second observation, it's the same thing. Second observation में सिर्फ इतना ही था, the magnet was moved away from the coil. So when the magnet was moved away from the coil, again there was some temporary deflection in the galvanometer and current was again induced in the coil. Third observation, not necessary कि आप हमेशा ही magnet को move करो. So if the coil is moved towards or away from the magnet, then again
there is some current recorded in the galvanometer. Okay, so far इस पूरे चैप्टर का बेसिक आइडिया ये है, करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है। जब करंट प्रोडक्शन की बात आती है यहाँ पे, तो इन दिस केस हम करंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ से प्रोड्यूस हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने एक्चुअली इन रियलिटी एक कॉइल के साथ एक लूप में हमने कोई ईएमएफ सोर्स कनेक्ट ही नहीं किया। वी हैव नॉट कनेक्टेड एनी बैटरी ओवर हियर। ओके, दैट इज अ बेसिक आइडिया। तो टू अंडरस्टैंड दिस और टू वेरीफाई दिस, Faraday performed some experiments। उसने पहले एक कॉइल लिया, एक मैग्नेट लिया, दोनों को रेस्ट पे रखा है। दोनों को रेस्ट पे रखने के बाद गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है कॉइल को, और उसमें कोई करंट नहीं मिला। देयर वाज नो करंट रिकॉर्डेड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन कॉइल एंड मैग्नेट बोथ वर एट रेस्ट। When he started moving magnet towards the coil, temporary deflection in the galvanometer was recorded। मतलब a very small current, temporary current was recorded। जब उसने मैग्नेट को अवे मूव किया तो भी द करंट वाज रिकॉर्डेड बट विद अपोजिट पोलैरिटी। ओके, जब उसने कॉइल को अवे या टुवर्ड्स मूव किया, इन बोथ केसेस देयर वाज सम करंट रिकॉर्डेड इन द गैल्वेनोमीटर। ओके, so the idea is whenever there is relative motion between coil and magnet, there is induction of current, जिसको हम induced current बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं an EMF is induced in the circuit which is driving the current। तो आप बोल सकते हो whenever there is relative motion between coil and magnet, an EMF is induced in the circuit। This is what you can say। Okay, now ये जो इंडक्शन हो रहा है, okay, EMF induced हो रहा है, मतलब this can be put forward in the form of two laws। उसको हम लोग बोलते हैं Faraday's laws of electromagnetic induction। So Faraday's law of EMI, electromagnetic induction। First law, Faraday's first law। Faraday's first law is qualitative। मतलब ये आपको सिर्फ बताता है कि हो क्या रहा है। देखो दो चीजें हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बताएगा कि क्या हो रहा है, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव का मतलब इतना होता है कि कितना EMF इंड्यूस हो रहा है, दैट इज व्हाट इट विल टेल यू। सो Faraday's first law simply tells you that whenever there is relative motion between a coil and a magnet, an EMF is induced। इसको भी बोल सकते हो, या you can put forward the same idea in terms of magnetic flux। I hope कि आपको फ्लक्स का कॉन्सेप्ट याद है, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, जिसको याद नहीं है मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको फ्लक्स पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, इन जनरल फ्लक्स क्या होता है पता होना चाहिए। सी द थिंग इज, लेट अस से हमारे पास यहाँ पे एक एरिया है, सम एरिया, एंड देयर इज आल्सो मैग्नेटिक फील्ड। तो हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are passing normally to this area। अब ये जो मैंने B बार बताया है, ये B बार दिस इज नॉट नॉर्मल टू द गिवन एरिया। ये गिवन एरिया A को नॉर्मल नहीं है, तो हमको पहले देखना पड़ेगा कंपोनेंट ऑफ B बार इन द डायरेक्शन ऑफ A बार। A बार का डायरेक्शन मतलब हम लोग किसी भी एक एरिया एलिमेंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और वो नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल देता है एरिया का डायरेक्शन। Okay, so the idea was very simple। The idea is very simple। How many number of magnetic field lines are passing through a given area normal to it? ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो ये जो है आपका, this is B cos थीटा। तो जब आप B cos थीटा को A से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। Similarly, E cos theta into A was electric flux। Here we are talking about magnetic fields, इसलिए magnetic flux। तो कितने magnetic field lines एक given area को perpendicularly cross हुए हैं, that is magnetic flux, right? Now the idea is this। अब let us go back to first law। Now what happens is, जब भी हमारे पास एक कॉइल था, मान लो पहले मैंने in such form बताया है, I have taken a coil and a galvanometer।
आई कैन शो इट विथ सम अदर नोटेशन ऑल्सो. मेरे पास एक वायर है, दिस इज अ वायर इन द फॉर्म ऑफ लूप, दिस इज अ कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ लूप. हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल. आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे एंड एट साउथ पोल. तो समथिंग लाइक दिस, मान लो you have some flux like this. This is magnetic lines. Okay, तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस कब होगा कब नहीं होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. जब दोनों रेस्ट पे है, मतलब कॉइल और मैग्नेट, तो इन दिस केस नो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑब्जर्व्ड. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल, एसोसिएटेड विद द कॉइल आर कांस्टेंट. तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है. जैसे ही मैंने इस कॉइल को या मैग्नेट को मूव करना चालू किया, तो यू सी एज द कॉइल इज मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेट, दिस कॉइल इज एनकाउंटरिंग मोर एंड मोर फ्लक्स. तो फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो जैसे ही फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. सो दिस इज फर्स्ट लॉ. तो फर्स्ट लॉ को आप दो तरीके से बता सकते हो. Whenever there is relative motion between a coil and a magnet, there is induced EMF in the coil. ये थोड़ा लूज स्टेटमेंट है, बट इन रियलिटी जब जब मैग्नेट या कॉइल मूव होगा तो हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंजिंग. तो आप बोल सकते हो whenever there is change in the magnetic flux associated with a coil, an EMF is induced in the coil. Okay, so this is qualitative law because it is telling you what is happening. So whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil, there is an induced EMF in the coil. This is Faraday's first law. Faraday's second law. ये आपको बताता है क्वांटिटी. ओके, तो हमने बोल तो दिया यहाँ पे, मतलब फैराडे ने बोल दिया जब जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. कितना होगा, हाउ मच? So Faraday's second law tells you the magnitude of induced EMF in the coil is directly proportional to rate of change of flux linked with the coil. This is second law. So it tells you that whenever there is change in flux linked with the coil, then an EMF is induced and it is given by, it is proportional to d phi by dt. Okay, so the magnitude of induced EMF in a coil is directly proportional to rate of change of flux linked with the coil. So E is equal to some constant d phi by dt. अगर आप SI यूनिट्स में हो तो इन SI यूनिट्स K इक्वल टू 1 होता है, therefore E is equal to d phi by dt होता है. Right? So this becomes, by the way, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो mod of E बोल सकते हो. Right? Good. So this is Faraday's second law. अब आया लेंज लॉ. लेंज लॉ, तो लेंज लॉ क्या था? लेंज ने सिर्फ इतना बताया what is the direction of induced EMF or induced current. So you have to understand with the help of a diagram again. तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डायग्राम. And there is something basic that you should be aware of. अगर मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल में अगर करंट है, मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मैं अगर इस पॉइंट से देख रहा हूं, तो ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो एनी करंट कैरिंग कॉइल behaves as a magnetic dipole. कोई भी करंट कैरिंग लूप होगा तो इट बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब वहां पे दो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. So when you are looking at this current from this particular side A, so ये जो side है, the one which is facing point A will appear as north pole, और अगर आप दूसरी साइड से देख रहे हो तो you will feel it is south pole. Okay,
तो डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि मैं अगर ए पॉइंट से देख रहा हूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, वही करंट मैं बी पॉइंट से देख रहा हूं तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज एनी करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डायपोल. दूसरा, from one side of the loop acts as north pole of the magnet and other side acts as south pole of the magnet. यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं इसको because यहाँ पे मैग्नेटिज्म due to current है. Okay, this is what you should know. Now what will happen जब आप इस कॉइल को मूव कर रहे हो, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है. So let us say कि ये जो कॉइल है या फिर मैग्नेट है, let us say मैग्नेट जो है it was moving towards the coil. जब मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल मूव होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, राइट? द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट विल अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट. मतलब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल वाज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल. कॉइल में करंट ऐसा जनरेट हो गया कि ये भी अब नॉर्थ पोल जैसा एक्ट करेगा, और आपको पता है नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन होता है. ओके, राइट? तो बेसिक आइडिया वाज दिस. इस करंट को जिसने प्रोड्यूस किया, किसने प्रोड्यूस किया? मूविंग नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल. कॉइल के पास नॉर्थ पोल आ रहा था मैग्नेट का, एंड बिकॉज ऑफ दिस मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल वहां पे करंट या ईएमएफ इंड्यूस हुआ. लेकिन जो करंट इंड्यूस हुआ है वो ऐसा है कि वो नॉर्थ पोल जैसा एक्ट होगा, और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड नॉर्थ पोल ड्यू टू करंट दे विल अपोज. मतलब जिसने उसको प्रोड्यूस किया वो उसी को अपोज कर रहा है, राइट? मतलब वो मैग्नेट को फर्दर क्लोजर आने नहीं देगा. उल्टा भी ट्रू है, उल्टा भी ट्रू है. मतलब अगर ये मैग्नेट दूर जा रहा होता तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो इस केस में करंट ऐसा इंड्यूस होगा दैट दिस फेस विल एक्ट एज साउथ पोल. तो इस केस में क्या था कि मैग्नेट दूर जा रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था, करंट इंड्यूस हुआ. करंट ऐसा इंड्यूस हुआ कि वो जो कॉइल है उसका जो फेस मैग्नेट की तरफ है वो एज साउथ पोल एक्ट करेगा. फिर नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगा, दिस टू विल अट्रैक्ट. मतलब वो ना पास आने दे रहा है ना दूर जाने दे रहा है. सो लेंज लॉ just tells you that the EMF induced in the coil is such that it opposes the cause producing it. मतलब यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा. मतलब जो EMF इंड्यूस हुआ उस EMF को जिसने प्रोड्यूस किया वो उसी को अपोज करता है. तो E इक्वल टू माइनस d∅dt. तो फैराडे सेकेंड लॉ और लेंज लॉ में सिर्फ एक साइन का फर्क है, क्योंकि फैराडे ने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के बारे में कोई कमेंट किया ही नहीं. सो लेंज सेड कि ओके ये करंट ऐसा होगा कि वो जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसी को अपोज कर रहा है. सो दैट इज लेंज लॉ, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग इज ये जो हमने लिखा है E इज इक्वल टू माइनस d∅dt. अब ये हमको थ्योरेटिकली प्रूव करना है. ओके, तो इसका जो थ्योरेटिकल प्रूफ है बेसिकली, बाय द वे वो जो भी थ्योरेटिकल प्रूफ हुआ सॉरी उसको हम लोग बोलने वाले हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. मोशनल क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इट इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन एज आई सेड, तो इसलिए इसको बोलते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. उसमें पहला आएगा आपका ट्रांसलेशन मोशन. Translational motion of a conductor. Translational motion of a conductor. Okay, so basically हमको करना क्या है? हमको ये E इक्वल टू माइनस d∅dt प्रूव करना है, और ये प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं. एक जो आपके न्यू टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, राइट? ओके, उस केस में यू जस्ट प्रूव दिस वन. आप फैराडे का सेकंड लॉ प्रूव करते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ
साइन, मतलब नेगेटिव साइन आए नहीं आए डजंट मैटर बिकॉज यू प्रूव magnitude of induced EMF is equal to rate of change of flux, राइट। थोड़ा अप्रोच वो अलग है, जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा अलग है, मैं दोनों ही कवर करने वाला हूँ बिकॉज इट्स मोर और लेस 90% सेम चीज है, सिर्फ 10% वेरिएशन है दोनों चीजों में, दोनों टाइप के डेरिवेशन है। तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं पहले यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लेने वाला हूँ एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन, ओके। तो ये क्रॉस मतलब दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, so it is something like this, okay, this is magnetic field which is going inside। आपको डॉट और क्रॉस कन्वेंशन पता होना चाहिए, व्हाट इज डॉट एंड व्हाट इज क्रॉस। नाउ इस मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एक कॉइल है, लेट अस से आई हैव दिस कॉइल ओवर हियर, जस्ट अ मिनट, समथिंग लाइक दिस। तो इस कॉइल का कुछ पार्ट इनसाइड द फील्ड है और कुछ पार्ट आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, ऑलराइट। सो लेट अस से इसको कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस। ये जो साइड है पी एस, इसका लेंथ मैं मान लेता हूं एल है, एंड ये जो साइड है आपके पास this much which is inside the field sorry which is inside the field, इतना पार्ट, इसको मैं मान लेता हूं x। तो ये पार्ट है आपका x, ओके। नाउ सबसे पहले हाउ मच फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल, सबसे पहले ये देखना होता है। हमने कोई मोशन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया, हम जो कॉइल है PQRS वो रेस्ट पे था, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा था, इनिशियली कोई EMF इंड्यूस नहीं है। तो द आइडिया हियर इज, सबसे पहले ये देखो कि हाउ मच फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल, और बाय डेफिनेशन अभी भी मैंने बताया था फ्लक्स फाई is b bar dot a bar which is b a cos theta where theta is angle between b bar and a bar, okay। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इफ यू अंडरस्टैंड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द प्लेन जा रहा है, और एरिया कभी भी याद रखना, हम अगर एक कॉइल भी लेते हैं, एक सर्कुलर एरिया भी लेते हैं, तो सर्कुलर एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस केस में भी ये जो हमारे पास कॉइल है PQRS, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो भी बोर्ड के प्लेन के अंदर जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपके पास एक कॉइल है समथिंग लाइक दिस, इसका एरिया मतलब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आप इस कॉइल को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। तो हमारे पास जो कॉइल है उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो भी अंदर की तरफ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, मतलब थीटा 0 होगा, मतलब B into A is the initial flux linked with the coil, but A is L into X, क्योंकि X इतना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, तो इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज B into L into X। that is important to understand। now let us say अब मैं इस कॉइल को बाहर की तरफ मूव करता हूं विथ वेलोसिटी v। सो लेट मी मूव दिस कॉइल आउटसाइड द फील्ड विथ वेलोसिटी v। तो जब हम इस कॉइल को बाहर की तरफ मूव करेंगे, इन दैट केस देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स। सो दैट चेंज इन फ्लक्स d phi by dt इज इक्वल टू, क्योंकि जैसे जैसे कॉइल को बाहर निकालोगे तो फ्लक्स चेंज होगा ना, so that will be equal to d dt of blx
which is equal to B into L into dx by dt. dx by dt. dx by dt is V, so BLV, क्योंकि by definition rate of change of displacement या फिर distance upon time is speed and rate of change of displacement is velocity. तो ये जो आ गया ये आपका B into L into V आ गया. Okay, so this is rate of change of flux. तो ये आपको पता होना चाहिए that flux happens to be d phi by dt, sorry, rate of change of flux happens to be B into L into V. इतना आपको पता होना चाहिए. Now, यहाँ तक आपको अगर पता है, remember what was our task? हमारा task था to prove E equal to d phi by dt. What I'll do is let me bring this figure onto the next page so that we have this figure in front of our eyes. Now, what happens is, जैसे ही आपने कॉइल को बाहर मूव करना स्टार्ट किया, क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. एज सून एज यू मूव दिस कॉइल आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज चेंज इन फ्लक्स व्हिच इज गिवन बाय दिस. और आपको पता है जब भी फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. और ईएमएफ इज इंड्यूस मतलब करंट इज इंड्यूस. थोड़ा भी फ्लक्स चेंज हुआ, करंट चेंज हो, करंट इंड्यूस होगा. एंड दैट इंड्यूस करंट इज गिवन बाय, लेट अस से इट गोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो भी होगा, आई एम नॉट वरीड अबाउट डायरेक्शन एट दिस मोमेंट. तो डायरेक्शन क्या होगा? इट कम्स फ्रॉम राइट हैंड, सॉरी, इट कम्स फ्रॉम दिस स्क्रू रूल. ओके, तो वो आप खुद वेरीफाई कर लेना. राइट, वी कैन नॉट डू एवरीथिंग इन रिवीजन क्लासेस, सो दैट इज योर job to find out direction of induced current. Anyways, जैसे ही हमने कॉइल को बाहर मूव किया, एक करंट इंड्यूस हुआ. अब करंट इंड्यूस हुआ तो ये पार्ट PS, ये पार्ट इतना और ये इतना पार्ट. तो कॉइल का जितना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है वो मैग्नेटिक फील्ड में है. ये इंपॉर्टेंट है. And you have learned, आपने क्या सीखा है? आपने ये सीखा है, whenever a current carrying conductor is inside an external magnetic field, a force acts on it. देखो, you have to connect here. क्या लिंक था? लिंक था कि coil rest पे magnetic field is also not changing. Flux link is BLX. जैसे ही आपने coil को बाहर मूव करना स्टार्ट किया, flux link with the coil has changed. और जैसे ही फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ. करंट इंड्यूस हुआ तो इट बिकेम अ कंडक्टर कैरिंग करंट इनसाइड एक्सटर्नल फील्ड. तो वहां पे फोर्स एक्ट होगा. तो एक फोर्स F1 होगा यहाँ पे और उसको अपोजिट नीचे होगा F2 यहाँ पे, और एक फोर्स यहाँ पे मैं बोलता हूँ F3. तो व्हाट हैपेंस इज, ये फोर्स F1 और F2, they are equal and opposite and they cancel out each other. Okay, so forces F1 and F2, they are equal and opposite and they cancel out each other. So only force is F. Okay, इसका मतलब F का डायरेक्शन देखो. F का डायरेक्शन क्या है? इनसाइड है. हमको कॉइल कहाँ मूव करना था? आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. विच मीन्स अगर मुझे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना है, मान लो मुझे कॉइल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मूव करना है, लेट अस से कि मुझे इसको dx से मूव करना है. आई वांट टू मूव दिस कॉइल विथ एन अमाउंट dx. तो वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिंग फोर्स है. तो वर्क डन टू मूव द कॉइल with a small displacement dx out from the field is minus f dx, where negative sign indicates that f and dx are oppositely directed. Okay, so this is what you should know. और आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, that is
what is the equation of force, because that is important. What is the equation of force? आपको पता है force acting on a current carrying conductor inside a magnetic field is Bill sin theta. So let us say, मैं बोल देता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, डी फाई डी इज बी एल बी. इसको मैं बोल देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, आई मीन. इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2. फोर्स एफ इज बी इनटू करंट. करंट कितना लिया हमने, आई, लेटर से बी आई एल साइन थीटा. ओके, but as you see here, लेंथ एलिमेंट में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना, 90 डिग्री. क्योंकि लेंथ एलिमेंट, करंट कैसे जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है. तो दे आर परपेंडिकुलर. सो थीटा इज 90 डिग्री, which implies sin 90 is 1. Therefore, force F is equal to B into I into L, equation 3. From 2 and 3, you have dW work done equal to minus B I L dx. Very good. But what we know is electric power का definition हमको पता है. What is electric power? Electric power is nothing but work done per unit time, मतलब dW by dt, which is equal to V into I. देखो इलेक्ट्रिक पावर के 2-3 डेफिनेशन थे, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R, है ना, V into I. तो मैं यहाँ पे E into I, E की जगह V की जगह पे E लिख रहे हैं. यहाँ पे इंड्यूस EMF के लिए हम लोग E डिनोट करते हैं, इसलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग V, I am writing E. That's it. So work done per unit time, that is electric power, is E into I. Therefore, you have dW equal to EI dt. I is current. Equation number 5. तो 4 और 5 में अगर आप देखोगे तो फ्रॉम 4 and 5 लेफ्ट हैंड साइड आर बोथ dW. तो आपको मिल जाएगा माइनस बी आई एल dx इक्वल टू EI dt. ओके, तो I कैंसल आउट हो गया, राइट. देन E will be equal to minus BL dx by dt, right. तो ये जो L है, let us write just small l, doesn't matter really capital या small. ये आ गया minus BL dx by dt, but dx by dt is V. ओके, तो ये आपके पास आ गया E is equal to minus BLV. ओके, but from equation number 1, what is BLV? It is d phi by dt. तो आ गया फाइनली आपके पास E is equal to minus d phi by dt. हो गया आपका लेंज लॉ प्रूव, राइट. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. देखो, द ओनली थिंग इज, हम लोग पूरा डायरेक्शन वापस कर लेंगे बिकॉज ये एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं. द ओनली आइडिया हियर इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. फिर डिस्क्राइब तो कर सकते हो. कंसीडर अ कॉइल PQRS इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड B. मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि तब आप पेपर पे लिखोगे इसलिए पेपर. एनीवेज, लेट द लेंथ ऑफ साइड PS इज L and the part of side SR, that is X, is inside the magnetic field. That's it. So we know that flux is given by B into A, which is B into L into X. This is initial flux linked with the coil. Now the coil is moved out from the magnetic field with velocity V, and hence the flux changes, which is given by d phi by dt, which is d dt of phi. Phi is B into L into X. Since B is constant because magnetic field हमने चेंज नहीं किया, ये जो लेंथ है कॉइल का ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये चेंज नहीं होगा. दिस कंप्लीट लेंथ L will be inside the magnetic field, है ना. चेंज क्या होगा, dx. क्यों dx चेंज होगा, क्योंकि ये जो साइड है, व्हेन आई मूव द कॉइल, मैं कॉइल को मूव करके बता रहा हूँ बाहर, जब मैं कॉइल को बाहर की तरफ मूव करूंगा तो ये जो साइड है, ओनली X साइड विल फील एनी डिफरेंस, राइट. तो या तो वो कॉइल जो होगा उसका जो X साइड है, सिर्फ उस केस में मैग्नेटिक फील्ड
the part of x which is in magnetic field that is changing, इसलिए हमने dx by dt लिखा है, and dx by dt is velocity, so BLV आगे आपके पास d phi by dt equal to BLV, equation number 1. लेकिन because we are moving the coil और वहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने का मतलब ये होता है that there will be induced current. तो जैसे ही करंट इंड्यूस हुआ कॉइल में, तो इट बिकेम अ कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके ऊपर एक फोर्स F1, यहाँ पे एक फोर्स F2 एक्ट हुआ, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे एक फोर्स है F जो कैंसिल आउट नहीं हुआ. तो एज यू सी फोर्स इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. व्हेन आई वांट टू मूव दिस कॉइल बाय एन अमाउंट dx, मुझे dx से कॉइल को शिफ्ट करना था, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा. therefore वर्क डन dw to move the coil by an amount dx is minus f dx, equation number 2. Excellent. Now, but you know that force acting on a current carrying coil is BIL. तो ये था करंट I आपके पास, L sin theta, but theta is angle between, theta is angle between what? It is angle between length element and magnetic field. बायोट-सावर्ट लॉ बताना चाहिए, है ना. और इस केस में थीटा हमारे पास है 90 डिग्री, but theta is 90. Therefore you have sin theta to be equal to 1. Therefore you have force F equal to B into I into L. तो इक्वेशन नंबर 3 अगर 2 में डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा dw इक्वल टू माइनस BIL dx. 4 इक्वेशन नंबर 4 बन गया. बट हमें पता है इलेक्ट्रिक पावर दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू E into I. Therefore dw is equal to EI dt. Equation 5. From equation 4 and 5, left hand side and left hand side of both equations are same, तो आपको मिल जाएगा BIL. ये I कैपिटल लिख दो, दोनों कैपिटल है, दोनों स्मॉल लिखो, I doesn't matter really. BIL dx equal to EI dt. I कैंसल हो गया, therefore you have E is equal to minus BL dx by dt. But dx by dt is V, तो minus BLV. Therefore E is equal to minus BLV. BLV was d phi by dt from equation number 1. ये आ गया आपका theoretical proof of Lenz law, right? So good. तो ये एक approach था. This is one of the approach of proving Lenz law. जो दूसरा approach है 50% 60% सेम है, राइट. मैं तो बोलूंगा 90% तक सेम है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है उसमें, एंड दैट वी विल सी टुमारो, बिकॉज हमको कल ये भी देखना है कि ये तो ट्रांसलेशन मोशन है. ट्रांसलेशन मोशन मतलब क्या किया आपने स्ट्रेट लाइन में मूव किया, किसको, कॉइल को मूव किया आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन हो सकता है हमारे पास एक बार है, रॉड है, वो रोटेट हो रहा है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो भी फ्लक्स चेंज होता है. दैट वी विल see in the next session.